Good morning, students. Welcome in your new class. Myself, Dr. Savita Gautam, Assistant Professor of Mathematics, Government PG College, Hisar. I will teach you paper second, sequence and series. Students, you have already studied about sets and its algebra in your earlier classes. Now we shall study about boundedness of a set. Least upper bound and greatest lower bound of sets, greatest element and least element of sets, and we also study some other important properties of a set. What is set? Example of sets, notation for sets, finite set, infinite set, interval, subsets, class, family, index set. You have to read these topics, or you should know about these topics. These are preliminaries for this paper. Have you seen or watched the videos which I had sent to you? If you have any problem, I will share the link of Google Meet and you can discuss with me in that meeting. Now we discuss the boundedness of a set. For a boundedness of a set, we should know about the supremum and infimum of a set. Supremum means least upper bound of a set. We denote supremum by LUB. Similarly, infimum means greatest lower bound of a set and greatest lower bound GLB. And for understanding the infimum and supremum, first of all, we understand lower bound and upper bound. For a lower bound, consider a real line having 2 points A and B, or 2 elements A and B. Clearly from the figure that we draw 2 points on a real line, x is equal to A and x is equal to B. In the left of x is equal to A, all elements are less than equal to A, and right of B, all elements greater than equal to B. Consider an interval, closed interval A to B, name it as I. Clearly A से छोटी सभी जितनी भी वैल्यू है आपके पास, इंक्लूडिंग A फॉर द सेट या फॉर द क्लोज इंटरवल A to B, सभी के सभी वैल्यू आपके क्या होंगे? लोअर बाउंड होंगे. कितनी वैल्यू आएगी आपके पास A से छोटी? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ. तो वी कैन से दैट फॉर एनी रियल नंबर m सच दैट m इज लेस देन इक्वल टू m डैश, एंड m डैश कहाँ से बिलोंग करेगा? आपका I से. तो m जो हो गए उनको हम क्या कहेंगे? लोअर बाउंड्स ऑफ द सेट I. इन लोअर बाउंड्स की एक कलेक्शन कर ली हमने. उनमें से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा या जो मैक्सिमम होगा उसको हम कहेंगे इन्फीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. फॉर एग्जांपल, taking an close interval 1 to 3, clearly all the element of this interval greater than equal to 1. So therefore 1 is lower bound and also 1 is the greatest lower bound of this interval. And if we replace this interval in place of closed interval, we take open interval 1 to 3, then its greatest lower bound is also 1. बट डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्लोज इंटरवल में आया आपके पास 1, यानी कि इट बिलोंग्स टू द सेट. बट जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ओपन इंटरवल का भी 1 आया, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल. यानी कि 1 वो छोटी वैल्यू है जो इस इंटरवल के हर एलिमेंट से छोटी है या बराबर है. क्लोज इंटरवल है तो आपके पास इनइक्वालिटी क्या आएगी? लेस देन इक्वल टू, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू A belongs to closed interval 1 to 3. And similarly, for open interval 1 less than A belongs to open interval 1 to 3. सेकेंड पेज पे चलिए. Similarly, for each x greater than equal to B, clearly from the figure that we find m such that m is greater than equal to m dash and m dash belongs to closed interval AB.
Therefore these m are known as a upper bounds of closed interval AB. Smallest value of m जितने भी आपके अपर बाउंड्स हैं उनकी एक कलेक्शन करिए, इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी आपके पास वो इसका क्या होगा, सुप्रीमम। यानी कि जो भी एलिमेंट है इस सेट के वो सारे के सारे या तो m है या m से छोटे हैं। देन m इज़ नोन एज ए अपर बाउंड and smallest of these m is known as a least upper bound and supremum of a set. Consider taking a example, the set having element 1 2 3 4, finite set का example लिया हमने। greatest lower bound of this set is 1. 1 क्यों हुआ, because all the element of set S greater than equal to 1 या तो 1 है या 1 से बड़े हैं, तो therefore 1 is lower bound and also the greatest lower bound of this set. एंड लीस्ट अपर बाउंड क्या हुआ इस सेट का, 4. क्यों, बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट एस लेस देन इक्वल टू 4, सारे के सारे एलिमेंट एस के या तो 4 है या 4 से छोटे हैं, तो देयरफॉर लीस्ट अपर बाउंड इसका 4 हुआ। एंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन से दैट 1 बिलोंग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट इज 1 and 1 belongs to S, and least upper bound of set is 4 and 4 belongs to S. But we इन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज इंटरवल 1 2 3 लिस्ट अपर बाउंड आपका क्या आया था इसका 3, तो 3 क्या बिलोंग करता सेट से, यस, बट ओपन इंटरवल से बिलोंग नहीं करता, लेकिन फिर भी उसका क्या है वो लिस्ट अपर बाउंड। सिमिलरली 1 उसका लोअर बाउंड भी है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है, बट 1 ओपन इंटरवल से बिलोंग नहीं करता। तो यानी कि क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट या अपर बाउंड ऑफ सेट या लोअर बाउंड ऑफ सेट या लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट may or may not belongs to the set. सेट से बिलोंग कर भी सकते हैं और सेट से बिलोंग नहीं भी करते। और क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि अगर किसी भी सेट के लोअर बाउंड या अपर बाउंड आते हैं हमारे पास या एग्जिस्ट करते हैं तो वो कितने होंगे, हाउ मैनी, देयर आर इन्फाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स एंड इन्फाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड। बट इफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट एग्जिस्ट then they are unique. So now we discuss bounded set. Let S be any subset of R, then S is called bounded if there exist two real numbers m and capital M such that x greater than equal to small m and less than equal to capital M for all x belongs to S. यानी कि ये कह सकते हैं हम S के हर एलिमेंट कहाँ किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं, स्मॉल m एंड कैपिटल M के बीच में, तो यानी कि सेट S आपका क्या आ जाएगा, बाउंडेड आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम। टेक ए सेट S हैविंग दोज एलिमेंट 1 by n सच दैट n बिलोंग्स टू n। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सेट को रियल लाइन पे प्लॉट करके देखो, 0 and 1 क्लियरली फ्रॉम द फिगर दैट 0 पे अप्रोच कर रहे हैं एस के एलिमेंट, 0 हो नहीं रहा, जैसे जैसे n आपका बढ़ता जाएगा, नेचुरल नंबर है, लास्ट एलिमेंट कहाँ अप्रोच करेगा, 1 by infinity पे, तो यानी कि कहाँ करेगा 0, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू s। एंड कैपिटल सबसे मैक्सिमम एलिमेंट इसके अंदर क्या है 1, सेकंड क्या बनेगा 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 एंड सो ऑन। तो देयरफॉर वी कैन से दैट x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। S के हर एलिमेंट कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, 0 और 1 के बीच में, तो देयरफॉर S इज बाउंडेड सेट। अनबाउंडेड सेट, लेट S बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, देन S इज कॉल्ड अनबाउंडेड इफ लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट फॉर S। या तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट ना करे या अपर बाउंड ना करे या दोनों ना करे। ऐसा नहीं है कि लोअर बाउंड नहीं करेगा तो अपर बाउंड भी नहीं करेगा, नहीं, अपर बाउंड कोई सेट आपके पास ऐसा मिलेगा जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट तो करता है पर लोअर बाउंड नहीं करता, लेकिन कोई सेट हमें ऐसा मिलेगा जिसका लोअर बाउंड करता है अपर बाउंड नहीं करता, और कोई ऐसा भी एग्जाम्पल हमें मिलेगा कि जिसके दोनों ही बाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते। तीनों केसेस में उस सेट को हम क्या कहेंगे, अनबाउंडेड सेट। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, प्लॉट द नेचुरल नंबर ऑन रियल लाइन 1 2 3 एंड सो ऑन। हमें एक एलिमेंट 1 तो ऐसा मिल गया कि सारे के सारे एलिमेंट जो नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे या तो 1 है या 1 से
बड़े है, तो यानी कि लोअर बाउंड तो हमें इसका मिल गया और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी इसका मिल गया कि क्या है 1, बट वी कैन नॉट फाइंड अ अपर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिकॉज देर इज़ नो एंड ऑफ द नेचुरल नंबर। हमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसके लिए हम ये कह सकें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के हर एलिमेंट उस नंबर से छोटे या बराबर हैं, इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा सेट हो गया आपका अनबाउंडेड सेट। सिमिलरली सेट ऑफ रियल नंबर, क्लियरली ऑन अ रियल लाइन वी कैन से सी दैट लेफ्ट एंड पे भी ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, राइट पे भी कहाँ अप्रोच करता है इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा और एक प्लस इन्फिनिटी की तरफ, बट देर इज़ नो एंड ऑन लेफ्ट साइड एंड देर इज़ नो एंड ऑन अ राइट साइड, तो देयरफॉर सेट ऑफ रियल लाइन इज आल्सो ए अनबाउंडेड set. Now consider another example, 2 raised to power s, the set having the element 2 raised to power n and n belongs to n। थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं इसको कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इस सेट के अंदर, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5 and so on, and plot these number on a real line। we have a 2, then 1, 2 किस साइड आएंगे, ये बढ़ते जा रहे हैं यानी कि आपके राइट साइड आएंगे, 2 raised to power 2 and 2 raised to power 3 and so on। तो क्लियरली दिस सेट इज अनबाउंडेड अबव, यानी कि जिस सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट ना करे उस सेट को हम क्या कहते हैं अनबाउंडेड अबव, और जिस सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट ना करे उस सेट को हम क्या कहेंगे अनबाउंडेड बिलो, और यानी कि लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे तो क्या कहेंगे द सेट इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, एंड अपर बाउंड एग्जिस्ट करे उसको क्या कहेंगे द सेट इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। तो दिस इज ऑल अबाउट बाउंडेड सेट, अपर बाउंड लोअर बाउंड ऑफ अ सेट, बाउंडेड सेट एंड अनबाउंडेड सेट। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, लेट एस पाई प्लस 1 over 2 raised to power n, n belongs to n। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे एस के अंदर, पाई प्लस 1/2, पाई प्लस 1/2 raised to power 2 प्लस पाई प्लस 1 over 2 raised to power 3 प्लस पाई प्लस 1 over 2 raised to power 4 एंड सो ऑन। थोड़ा सा और इलेबोरेट खोलो इसको, यह फर्स्ट एलिमेंट आपका बनेगा पाई प्लस 1/2, सेकेंड बनेगा पाई प्लस 1/4, थर्ड एलिमेंट बनेगा पाई प्लस 1/8 एंड फोर्थ बनेगा पाई प्लस 1/16 एंड सो ऑन। क्लियरली फ्रॉम these elements we can see that फर्स्ट एलिमेंट इज पाई प्लस 1/2, नेक्स्ट सेकंड में क्या है पाई प्लस 1/4, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन थर्ड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट इज ग्रेटर देन फोर्थ एलिमेंट एंड सो ऑन। क्यों 1/2 1/4, 1/2 बड़ा है 1/4 1/2, तो देयरफॉर आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये एलिमेंट्स मिलेंगे आपके पास। तो सारे के सारे एस के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, या तो पाई प्लस 1/2 है या पाई प्लस 1/2 से छोटे हैं, यानी कि x लेस देन इक्वल टू पाई प्लस 1/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, यानी कि s का एक ऐसा m मिल गया हमें जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे s के एलिमेंट किससे छोटे या बराबर है पाई प्लस 1/2। तो देयरफॉर पाई प्लस 1/2 इज द अपर बाउंड ऑफ द सेट s and pi plus 1/2 also the supremum of S या least upper bound of the set। आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट एलिमेंट कहाँ अप्रोच कर रहा है या लिस्ट एलिमेंट कहाँ जा रहा है। अभी सबसे छोटा एलिमेंट हमें पता तो नहीं चल रहा है क्या, लेकिन ये आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ अप्रोच कर रहा है। देखो पाई प्लस 1/4, पाई प्लस 1/2 8, पाई प्लस 1/16 अल्टीमेटली कहाँ अप्रोच करा, जैसे जैसे n हमारा बढ़ता जाएगा लिस्ट एलिमेंट क्या बनेगा पाई प्लस 1/2 रेज टू पावर इन्फिनिटी। क्या आएगा 1/2 रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है 1/∞, पाई प्लस 1/∞, और 1/∞ आपका क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि क्या बच गया आपके पास पाई। तो यानी कि अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि पाई की तरफ अप्रोच कर रहा है, बट पाई डज नॉट बिलोंग्स टू एस। तो यानी कि वी हैव ए 2 रियल नंबर, एक पाई मिला हमें और एक पाई प्लस 1/2 मिला, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एस के हर एलिमेंट पाई से तो बड़ा है और पाई प्लस 1/2 से छोटा या बराबर है। तो देयरफॉर एस आपका क्या आ जाएगा बाउंडेड, क्योंकि 2 रियल नंबर हमें मिल गए एम और कैपिटल एम, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं द सेट इज सेड टू बी बाउंडेड। क्लियरली सुप्रीमम एस आपका क्या बनेगा पाई प्लस 1/2, इट बिलोंग्स टू द सेट S। एंड इन्फीमम S क्या आया आपके पास
pi, but which does not belongs to S. So now we can talk about the greatest element and least element of the set. अगर किसी भी सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है और वो उसी सेट से बिलोंग करता है तो दैट सुप्रीमम बिकम ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट. सिमिलरली किसी भी सेट का अगर इन्फीमम एग्जिस्ट करता है और वो इन्फीमम उस सेट से बिलोंग करता है तो दिस इन्फीमम इज नोन एज ए लिस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट. क्योंकि ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि सुप्रीमम या इन्फीमम या लोअर बाउंड या अपर बाउंड ऑफ द सेट्स मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट. तो किस कंडीशन में ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट बनेंगे? जब अगर वो एग्जिस्ट करते हैं और वो बिलोंग करते हैं सेट से, देन दीज एलिमेंट्स बिकम या दीज सुप्रीमम या इन्फीमम बिकम ग्रेटेस्ट एज वेल एज लिस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट. In this example, supremum S belongs to S, so therefore this supremum is greatest element of this set. But infimum S does not belongs to S, so therefore this infimum is यानी कि for this set smallest element is not defined. So only greatest element which is equal to pi plus 1 by 2. Consider another example. The set S सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल 1,2. 1 पे ओपन है, 2 पे क्लोज है, यूनियन 3 पे क्लोज है और 8 पे ओपन है. तो यानी कि इन दो इंटरवल की यूनियन की कलेक्शन है आपके पास, उसका नाम हमने क्या दिया? एस. प्लॉट दिस एस इन रियल लाइन. वी हैव 1, 2, 3, 8. क्लियरली फ्रॉम द फिगर दैट एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 8. कोई भी x अगर हम ले लें जो 1 से बड़ा है और 8 से छोटा है, वो कहाँ जाएगा? S में. हालांकि 2 और 3 के बीच के जो एलिमेंट है उसके अंदर लाई नहीं करे, लेकिन एक कंक्लूजन तो हमें मिला ना कि दो रियल नंबर तो हमें ऐसे मिल गए जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि S के हर एलिमेंट 1 से तो बड़े हैं और 8 से छोटे हैं. इक्वेलिटी स्ट्रिक्ट आई है यहाँ पर, देखो इन इक्वेलिटी. क्योंकि इक्वेलिटी क्यों नहीं आई? क्योंकि 1 पे लेफ्ट ओपन है और 8 पे राइट ओपन है. तो यानी कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू S एंड 8 इज also does not belongs to S, but S is bounded because we have find two real number 1 and 8. So therefore we find supremum S is 8 which is does not belongs to S, and similarly infimum S is 1 which also does not belongs to S. तो क्या कंक्लूजन निकला हमारा इस सेट से कि जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो इस सेट के डिफाइंड नहीं है. तो therefore it is all about the upper bounds, lower bounds, least upper bound, greatest lower bound, least element या smallest element and greatest element of the set. Student can make an example of a set which is bounded above but unbounded below. Also make an example a set which is bounded below but unbounded above, and make an example which does not have a lower bound as well as upper bound, या which have a both upper bound as well as lower bound, या a make example of a bounded set. In your book you can do many examples, many questions of these topics. Thank you.